Hello everyone, welcome once again in my channel Learning Maths in Easy Way by Rashmi Gupta. Today I am going to continue topic surface area and volume. In this video I will explain about the surface area of cylinder, hollow cylinder and about cone, and we will also derive the formulas. So let us start with the cylinder. It is a right circular cylinder. Here I am drawing a cylinder. You all know about the figure. It is a cylinder. Okay, let's. It is radius of cylinder and this is the height. It is height of the cylinder. When we draw the net of this, net होती है या फिर हम कहें कि if we cut this, यदि हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं तो it will like a rectangular sheet. Okay, and two circles are there. एक बॉटम और एक टॉप सर्कल. ओके, नेम्ड इट एज, मान लिया मैंने इसको नेम कर दिया है ए बी सी डी एंड दीज आर टू सर्कल्स एम एंड एन. ओके, नाउ वी नो दैट कि इट इज़ रेडियस, और ये हमारा क्या है, ये सर्कुलर होता है. सर्कुलर एक सर्कल होता है और सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर. तो ये इट विल बी 2 पाई आर क्योंकि यहाँ से ही तो ओपन हुआ है, और इट विल बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट and it is the height of this sheet. So area of ABCD, it will be what? Area of rectangle is length into breadth, so it will be 2 pi r into h. We can assume that it is a first equation. Okay, now area of two circles. ओके, एक है हमारा टॉप एंड बेस. ये टॉप सर्कल, ये बेस सर्कल. इट इज़, क्योंकि ये टू सर्कल्स हैं तो एरिया हो गया 2 पाई आर स्क्वेयर. हमने क्या किया, एक सर्कल के एरिया से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स हो गया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. Now add both the equation. It is 2 pi r square or plus 2 pi r h. Here 2 pi r is common, so here I am taking 2 pi r as a common और ये बचा r plus h. So it is a formula of surface area, total surface area of cylinder. Now discuss about the curved surface area. अब ये कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया होता है एरिया विदाउट टॉप एंड बेस. मीन्स हम जब टॉप और बेस एरियाज को लीव कर देते हैं तो ये बचता है सिर्फ जो ये मिडिल वाला पार्ट होता है. मीन्स रेक्टेंगुलर शीट बचेगी हमारी सिर्फ. तो इट विल बी ए बी सी डी और ये इट इज़ कॉल्ड द कर्व्ड सरफेस एरिया. तो इट विल बी व्हाट, ये हमारा निकला हुआ एरिया ऑफ ए बी सी डी, इट इज़ 2 पाई आर एच. सो इट इज़ अ फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर. नाउ डिस्कस एग्जाम्पल ऑफ cylinder. It is, if radius and height of a cylinder are 5 centimeter and 9 centimeter respectively, find total surface area and curved surface area of the cylinder. So here I am writing r is equal to 5 centimeter and height is 9 centimeter, and we have to find out the total surface area and curved surface area. So curved surface area, first we will find out curved surface area. It is 2 pi r h. Formula is this. So put the value 2 into 22 upon 7. R is 5 and h is 9. So now do the multiply of it. It will be 44 into 45 upon 7. Now do the multiply of 45 into 4 is 180. So 0 और 80 carry, 18 is carry. 45 4 is again 180 और 180 को हम इसमें ऐड कर लेते हैं. It will be 1980 upon 7 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हम इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं. ठीक है. नाउ टोटल सरफेस एरिया एंड द फॉर्मूला इज 2 पाई आर प्लस एच.
it is 2 into 22/7 into 5 and 5 plus 9, means we have to put the values of radius and height here. So 44 into 5 into 9 plus 5 14/7. Cut it, ये हो गया 7 2 14, so it is 44 into 10 and it will equal 440 centimeter square. So जब हमें रेडियस और हाइट पता होती है सिलेंडर की, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ cylinder. Now discuss another example of cylinder. It is total surface area of a cylindrical tank is given. So यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, total surface area of a tank is 440 meter square and height is 3 meter. So you have to find out radius of the tank. तो यहाँ पर क्या है कि जब भी आपको एरिया दिया हुआ है और हाइट दी हुई है, यू कैन इजीली फाइंड आउट आर, और ये भी हो सकता है कि आपको रेडियस दिया हुआ है तो आपको हाइट फाइंड आउट करनी है. सो सिंपली वी हैव टू पुट द फॉर्मूला. टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर आर प्लस एच. पुट द वैल्यू. टोटल सरफेस एरिया इज 440, 2 into 22/7 and we have to find out the r. So r को हम ऐसे ही लिख रहे हैं, r plus 3. Okay, now do the cross multiplication. It will be 44 into r plus 3 is equal to 7 into 440. So we can separate the terms. सेपरेट द टर्म्स मीन्स हमने वेरिएबल टर्म को इधर लिख लिया, ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाकर डिवाइड में पहुंच गया है. 44 कट इट, इट विल बी 10 7 जा 70. नाउ मल्टीप्लाई दिस. आर की मल्टीप्लाई आर से किया, आर स्क्वायर प्लस 3r और ये 70 इधर आके माइनस हो गया इज इक्वल टू 0. नाउ आप लोगों को अब क्या है करना है, इसका फैक्टर करना है. इट इज़ अ इक्वेशन और इसके सभी को फैक्टर करने आते हैं कि जब यहाँ पर कोफिशिएंट 1 होता है 70 से मल्टीप्लाई करेंगे और 70 के हमें ऐसे टर्म्स ऐसे फैक्टर लाना है जिनका सम और -3 आ जाए. इट विल बी 10 7 जा 70. तो इट इज़ यू कैन राइट 10r minus 7r minus 70 is equal to 0. मीन्स 3r को हमने इन टू टर्म्स में स्प्लिट कर लिया. नाउ कॉमन ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज r plus 10 and here minus r plus 10. So I can write here r plus 10 is r plus 10 in one bracket and r minus 7 is equal to 0. Now these two are the factors of this equation. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, we can take this as r plus 10 is equal to 0. ओके और r इज इक्वल टू -10. तो क्या ये पॉसिबल है कि जो हमारी रेडियस है वो माइनस में हो? इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो ये वाली कंडीशन जो होगी ये हमारी नॉट पॉसिबल होगी और हम इसे सॉल्व करते हैं. r minus 7 इज इक्वल टू 0. तो ये हो गया r इज इक्वल टू 7 यूनिट इज मीटर. सो जो टैंक था उसका रेडियस है 7 मीटर. सो बाय दिस वे यू कैन फाइंड आउट द रेडियस, और यदि रेडियस गिवन है यू कैन फाइंड आउट द height by the same way. Now discuss another example, and I am taking this example from the R.D. Sharma. It is the radii of two right circular cylinder is in ratio 2:3. मीन्स यहाँ पर टू राइट सर्कुलर सिलेंडर्स की बात हो रही है और उनकी जो रेडियस है उनका रेशो 2:3 है एंड देयर हाइट इन द रेशो 5:4. दैट इज़ यदि हम एज्यूम कर लेते हैं कि R1 है फर्स्ट सिलेंडर की रेडियस, दैट मीन्स R1/R2 इज इक्वल टू 2/3. इट इज़ अ रेशो एंड सेम एज H1 एंड H1/H2 इज 5/4 and you have to find out what CSA, curved surface area, like that. आपको बताना है कि उनके कर्व सरफेस एरिया के में क्या रेशो होगा. सो इट इज़ एज्यूम दैट केस हम जब करते हैं तो ये R हो गया फर्स्ट सिलेंडर का, ये हाइट हो गई फर्स्ट सिलेंडर की. सो यू कैन फाइंड आउट CSA1 मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट सिलेंडर. ओके
and it is 2 pi r1 h1. Okay, so 2 pi r1 is 2 and h is 5. So 5 2s are 10, 2s are 20 pi. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. सेम एज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2, इट विल बी 2 pi r2 h2. It will be 2 pi into r2 is 3 और h2 is 4. So it will be 4 3s are 12, 2s are 24 pi. हमने क्या किया है, हमने दोनों सिलेंडर्स का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लिया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ बोथ सिलेंडर. CSA1 is 20 pi अपॉन इट इज़ 24 पाई. पाई से पाई कैंसिल आउट, 20 अपॉन 24. अगेन इट विल कट बाय 4, 4 5s and 4 6s. So it is 5 upon 6. Now we can say that the ratio of both curved surface area of both cylinder is 5:6. So now you can solve all the types of the application of the cylinders. Now discuss the next topic is hollow cylinder. होलो सिलेंडर किस टाइप का होता है, जैसे हमारे होते हैं आयरन पाइप्स. ठीक है, उसमें उस पाइप की जो सिलेंडर होता है, मीन्स जो पाइप होता है उसकी कुछ विड्थ होती है आयरन की, तो एक होलो बन जाता है कि बीच में वो खाली है और उसकी कुछ थिकनेस है. ठीक है, तो वी विल डिस्कस और आई एम ड्राइंग हियर द होलो सिलेंडर के कुछ होता कैसे है. ये हमारा है सिंपल सिलेंडर और इसके ही अंदर एक छोटा सा और पार्ट है लाइक दैट. इस टाइप से. ये होता है होलो सिलेंडर. जैसे हमारा एक पाइप होता है आयरन पाइप, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब इसमें क्या होता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, क्योंकि इसमें कुछ थिकनेस भी होती है. लेट एज्यूम दैट कि ये जो छोटा वाला पाइप होता है अंदर, ये होता है स्मॉल r, इसकी रेडियस है, और बड़े वाला जो होता है इसका रेडियस वी एज्यूम दैट हियर कैपिटल R, एंड द हाइट ऑफ द बोथ सिलेंडर आर सेम, इट विल बी h. तो अब ये क्या होगा कि जब हम इसका बेस पार्ट और टॉप पार्ट को अलग करेंगे तो इट विल बी लाइक दैट कि ये एक पार्ट है और इस टाइप से, और बीच में से ये होलो है. यहाँ से क्या है, इट इज़ स्मॉल r एंड इट इज़ कैपिटल R. सो वी हैव टू फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ दिस. तो हमें क्या करना होगा, थिकनेस के लिए वी हैव टू माइनस दैट कैपिटल R माइनस स्मॉल r. तो हम यहाँ पर लेते हैं एरिया. एरिया क्योंकि हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो दैट मीन्स वी हैव टू टेक आउट द एरिया ऑफ सर्कल्स. इट इज़ जो बड़े वाले सर्कल का होगा, इट इज़ पाई r स्क्वायर और माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर. तो हमने क्या निकाल दिया, हमने इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट कर दिया. ओके, ये हमारी हो गई. यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेते हैं, r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, इट इज़ फर्स्ट इक्वेशन. नाउ जो अब हमारा ये रेक्टेंगुलर, ये जो हमारा कर्व्ड वाला पार्ट बचेगा, ठीक है, इसका हमें सरफेस निकालना है. जो फर्स्ट वाला है, इट विल बी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, आई एज्यूम दैट इट इज़ बिग. मैं यहाँ पर बिग लिखते हूँ, जो बाहर का आउटर पार्ट है, या हम इसे लिख सकते हैं आउटर पार्ट. ओके, इट विल बी 2 pi r h. ओके, एंड सेम एज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर पार्ट, इट विल बी 2 pi स्मॉल r h. तो अब हमारे 3 हो गई है ये 2 इक्वेशन, ये थर्ड एज्यूम कर लेते हैं. एंड नाउ वी हैव टू ऐड दैम. ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, the formula is what, we have to add all them. It will be pi r square minus small r square plus it is 2 pi h is common और ब्रैकेट में कैपिटल R माइनस स्मॉल r.
So it is a very big formula to solve it, but it is very easy to understand that कि एक छोटा सा सर्कल है और एक बड़ा सर्कल है, हमें माइनस करके वी कैन फाइंड आउट इजीली द सरफेस एरिया ऑफ दिस पार्ट. ओके, और साथ में ये हमारा क्योंकि 2 सर्कल्स होंगे, एक टॉप और एक बॉटम, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑफ 2 ऑल्सो. तो मैं यहाँ पर ये करेक्शन कर देती हूँ. इट इज़ 2 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और इट इज़ 2 पाई एच क्योंकि ये आउटर पार्ट का सरफेस एरिया है और ये इनर पार्ट का सरफेस एरिया है. तो कुल मिला के टोटल सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का दिस. नाउ डिस्कस एन एग्जाम्पल ऑफ होलो सिलेंडर इज एन आयरन पाइप 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं. इट इज़ एच, लॉन्ग मीन्स उसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर, हैज़ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर रेडियस 26. एक्सटीरियर मीन्स कैपिटल आर, it is 26 centimeter and small r is 25 centimeter, and we have to find out the total surface area of hollow pipe. So we know the formula. Total surface area is 2 pi h this and 2 pi capital R square minus small r square. Now solve it. It will be 2 into 22 upon 7 into 20. यहाँ पे हमने h की जगह वैल्यू पुट की. Now r plus r means it is 26 plus 25 plus 2 into 22 upon 7, and here capital R square means 26 square minus 25 square. Okay, now solve it. When you do the multiply, 44 into 2, 880 upon 7. It is 26 plus 25 is 51. And now it is 44 upon 7. 26 square is 676 and 25 square is 625. I am writing here as it is, and it is 44 upon 7 into, when we solve it, 6 minus 5 is 1, 7 minus 5 is 2. ओके, नाउ अब ये हमारा आ गया. नाउ हम ले सकते हैं यहाँ से 51 अपॉन 7 इज़ कॉमन. 51 अपॉन 7, 880 प्लस 44. इट विल बी 51 अपॉन 7 इंटू, इट विल बी 4, 8 4 12, 924. और 924, 924 कट बाय 7, 7 1 जा 7, 2 7 3 जा और 1 7 2 जा. That means that it is 51 into 132, and it will be, when you do the multiply of it, it will be 6732 centimeter square. So calculation should be strong for this type of formula, and you can solve the problems of hollow cylinder. Now discuss the next topic of cone. That means in this we will derive the formula of surface area of cone. So first, same as I am drawing here a cone. It is cone. Same as ये हमारे cone की height होती है h, and it is radius of this cone small r. ओके, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ. एंड दिस इज़, एक जो नया हमारा एक और यूनिट, एक और हमारा कुछ शुरू होता है यहाँ पर, इसे बोलते हैं एल, एंड इट इज़ कॉल्ड द स्लांट हाइट ऑफ द कोन. ओके, इट इज़ स्लांट हाइट ऑफ द कोन. नाउ वी कट इट. जब हम इसको ओपन करते हैं तो वी विल गेट अ फिगर लाइक दैट. इस टाइप की हमको एक फिगर मिलती है. ठीक है, तो अब क्या करते हैं इसमें कि ये जो होती है इसको छोटे छोटे ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं लाइक दैट. अब हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत सारे ट्रायंगल हैं, और इट इज़ द स्लांट हाइट. ये जो होती है हमारी, ये एल होती है, ये B1 B2 B3 B4 मीन्स
सब ट्राइंगल का बेस, B1, B2, B3, B4 और ऐसे ही ये यहाँ तक आ जाता है जितना भी होगा, ठीक है। नाउ वी विल कंसीडर अबाउट द एरिया ऑफ, पहले हमें क्या निकालना होता है, एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल। एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज़ व्हाट, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू, और यहाँ पर जो हमारी हाइट है इट इज़ स्लांट हाइट, इट इज़ L, ओके। इसमें हम H नहीं लेते हैं, हम लेते हैं स्लांट हाइट को L। एंड नाउ इट विल बी व्हाट, हाफ इंटू बेस। अब बेस हमारे पास तो बहुत सारे हैं, मीन्स B1 प्लस B2 प्लस अप टू जहाँ तक भी जितने 8 ट्राइंगल्स होते हैं, तो उनको हाफ इंटू L। और अब ये जब हम इन सबको प्लस करते हैं तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो ये B1 प्लस B2 मिलकर क्या बन जाती है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, ओके। नाउ कट इट, so we simply get the formula pi r l. It is the curved surface area of cone. हमने क्या निकाला है, ये ऊपर वाला कर्व्ड सरफेस जो होता है, और नीचे का क्या होता है, हमारा एक सर्कल हमें मिलता है, बेस जो होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। बेस एरिया क्या होता है, बेस एरिया इज pi r square. So by adding of both we can find out the total surface area of cone is pi r square plus pi r l, and we can take common pi r plus l. It is the formula to find out the total surface area of a cone. और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जब ये हाइट और रेडियस आपको गिवन होता है तो यू कैन फाइंड L बाय द पाइथागोरस थ्योरम। जैसे कि ये एक हमारे पास ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, मैंने यहाँ से इतना पार्ट निकाला, ये R है, ये H है और ये L है। नाउ इट इज़ द हाइपोटेनियस ऑफ दिस ट्राइंगल एंड वी कैन फाइंड आउट L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो दैट मीन्स जब भी हमें कोन का हाइट और रेडियस पता होगा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द L, आफ्टर दैट वी कैन पुट इन द फार्मूला। हम L को फार्मूला में रख सकते हैं एंड वी कैन फाइंड आउट बोथ कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। Now discuss an example of cone is the radius of conical tent is 3 meter. Means radius of this tent is 3 meter and height is 4 meter. You have to find out the curved surface area and total surface area of tent. So I just discuss about कि जब भी हमें radius और height given होता है, first we have to find out L, slant height, R square plus H square. It will be what, R square is 9 plus 4 16 25 and we can find out it is 5 meter. अब हमको पता है कि L हमारी 5 सेंटीमीटर है। फर्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला इज पाई आर एल, इट विल बी 22/7 इंटू R is 3 and it is 5, और जब मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 22 इंटू 15/7 एंड इट इज़ 15 2 ज़ा 33 और ये हो गया 330/7 मीटर स्क्वायर। सो इट इज़ कर्व्ड सरफेस एरिया, ओके। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज, द फॉर्मूला इज पाई r plus L. Okay, now put the formula is 22/7 into 3 and 3 plus L is 5. So it will be what? It is 66/7 into 8, or when you do the multiply of 66 into 8, it will be 528/7 meter square. So by this way you can solve the applications of the cone. And in my next part of this video we will discuss about the surface area of sphere and hemisphere. तब तक के लिए stay home, take care and bye bye. Or yes, if you have any query or suggestion regarding these topics, you can send me a message in a comment box. Thank you.